Has a over 17 years of experience, 17 years of experience in the uh, industry experience in the wholesale, banking, rural retail, and SME. He's been working with SBI startup branch in BKC Kurla, and he's at the graduation. He has a MA Economics, MBA Finance and HR, and net qualified person. So he's having a industry experience in terms of startup banking relevant to ecosystem of our overall India. So Anu sir, over to you. We can start a session. If anything I'm missing in the introduction, you can please brief about yourself as well. Sorry. Sure. That's perfectly fine. I mean, this interaction has to be very effective, and I want to reach out to everyone. So, just want to have a brief idea about the audience that we have today. First of all, good morning and apologies to all for logging in late. I mean, time is money and it needs to be very sacrosanct. So, very first thing, I just need to understand my audience uh, because I'm not able to reach. So, am Yeah, I audible to all of you? my name is Girish Yes, sir. Chandane. I am innovator founder of Autofill System. I am into Okay. very innovative product and patent holder for a product called physical water conditioner. It is a must for every agriculture, and we are Okay. going to revolutionize every water treatment used in agriculture. Thank you. Okay. Just two things: your name, your product or company's name, and your location. My name is Girish Chandane, founder Girish. of innovator founder Autofill Systems, and Okay. my product name is physical water conditioner, and I am Okay. located in Kharghar, Navi Mumbai. Oh, very good. Okay. Thanks, Girish. Hello, sir. Good morning. Good morning. Myself, Dr. Pratap Singh Chavan. I'm chairman and CEO of One Stop Digital Agri Solutions Private Limited. We are based Okay. at Pune, and we are Okay. providing digital agro advisory services to the farmers. Okay. Great knowing you. Yes. Please go ahead. Hello, sir. I'm Archana Mahajan from Jalgaon, Maharashtra, and we are Hmm. the manufacturer of sanitation products like sanitary pads, maternity pads, diapers, and Pecone in research stage. And it is made up of banana leftover stem pulp. Hmm. It is utilized. And my Hmm. company name is Aru Solutions Private Limited. Can you repeat the name of company? Aru Hill Solutions Private Limited. Rohit. Okay. Thanks, ma'am. Hi, sir. Hi. I'm Aminek. I'm the founder and CEO of Longshore Technologies Private Limited. Hmm. We are basically a waste valorization firm wherein we focus on biological conversion of shrimp waste, Hmm. mainly the shrimp head and shell, into proteins and polymers, which are used into an array of fields like agriculture, water treatment, as well as cosmetics and high-end applications like pharmaceutical. Hmm. And we are based in Taloja, Mumbai. Taloja. Yeah. Okay. Great. Hello, sir. Hi. My name is Neeraj Borate. I'm the founder of two social enterprises, Mother Quilts and Gongdi.com. Hmm. Uh, so I'm here for Gongdi.com now. Hmm. So it's a social enterprise. We work with 350 plus artisans across 9 states. We Hmm. export this product to 19 different countries. We got Hmm. featured in 15 plus national newspapers, received 3 plus state awards, 1 plus international recognitions. So Hmm. we make handloom blankets using Hmm. Deccan ship wool. Hmm. We work with weavers across Maharashtra, Karnataka, Hmm. and we are trying to transfer these Ghongdi, a sheepwool blanket, into a healthcare textile now, a smart textile, Okay. Okay. which is good for therapeutic purpose, backache, spondylitis, sleep-based recovery Okay. blanket. Right. We are based in Pune, sir. Oh, great. Thanks, Neeraj. Good morning, sir. I'm Good morning. Praveen Charan. Hmm. I'm co-founder of OpenFin Technology. We Hmm. have a platform called Agreed, Hmm. wherein we are actually market aggregator. We Hmm. enable selling and buying of orange for the orange growers out here in Hmm. Vidarbha. We are based out of Nagpur. Oh, great. Thanks, Praveen. Thanks. Namaste, sir. Namaste. Namaste, sir. My name is Rishabh Kherde, Hmm. Director and Founder One Place Velocities Private Limited. Hmm. हम B2B फ्रूट्स में सप्लाई करते हैं, यानी एक किसान का फ्रूट लेके उसका सेल्फ Hmm. लाइफ बढ़ा के एक Hmm. ऑटोमाइज एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि जो इसका स्टॉक मेंटेन और किसानों का जो डेटाबेस है उसको हम प्रोवाइड कर सके
और उसका जो उस क्वालिटी का पैदावार म्हणजे यानी प्रोड्यूस होके हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। ये डिजिट ऑटोमाइजेशन कर रहे हैं सर हम, ओके साथ ही ओके फ्रूट की सप्लाई बढ़ा के ऑटोमाइजेशन कर रहे हैं और मिडल मैन हटा रहे हैं सर। तो जो ओके 30% वेस्ट होता है उसको वेस्ट को रोक के वो फार्मर का वो 30% वेस्ट जो बचेगा उस वेस्ट का भी पैसा फार्मर को मिलेगा सर। ओके 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 थैंक यू सर। यू आर लोकेटेड एट कोल्हापुर? नहीं हम महाराष्ट्र अमरावती डिस्ट्रिक्ट वरुड तहसील से बिलोंग करते अमरावती। हैं। अमरावती सर, वरुड ओके मोड़ से एक ऑरेंज का हब है सर, जो इंडिया में जो टॉप देखे तो बेस्ट क्वालिटी का ऑरेंज प्रोड्यूस होता है यहाँ। ओके थैंक्स ऋषभ। थैंक यू सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Myself, Omkar Prakash Sadoekar. I am a director of Itzi Foods and Agro Private Limited. Logo registered for trademark, and my product is instant Sukopni Solkadi Premix, located in Kolhapur, sir. लोकेटेड एट Kolhapur, sir. कोल्हापुर। ओके थैंक्स ओमकार। Okay. Hello, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। My name is Naresh Avchar. I am the founder of Jal Jeevan Agrotech Private Limited. I am located in Ahmednagar, Maharashtra. ओके I am the build farmers product for irrigation purpose. ओके The product will be save the agriculture wastewater. ओ एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर। Yes, sir. ओके तो आप इसको क्या करते हैं, इस वेस्ट वाटर को? हम लोग ने एक जो डिवाइस बनाया है, जो लीकेज के थ्रू जितना भी वेस्टेज वाटर होता है हम उसको सेव करते हैं सेव डिवाइस के। मतलब एक आप कुछ बराज कुछ ऐसा बना के वहां पे सेव करते हैं? हाँ, हम लोग ने ऐसा जो प्रोडक्ट बनाया जिसमें एक भी ड्रॉप वेस्टेज नहीं होता एग्रीकल्चर से, डिवाइस के थ्रू से। वो टेक्निकली जीरो सर। ये और पेटेंटेड इसका पेटेंटिंग वगैरह आपने करा लिया है? यस सर, इसका पेटेंट हो गया सर। ग्रेट 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 लगी। यस आगे। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। Hello, हेलो good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Hello, sir. I'm Krishna Somani, co-founder of Dhanaj Agritech Private Limited. As we are located in Selu, Parbhani district, Maharashtra. As we are working on compression of raw cotton in a mechanized way for purpose of the stocking and transport purpose. As we are working for the full-fledged ecosystem for the cotton industry and for the cotton farmers in India. Okay. And we are also associated with ICR Sirpot and Bajaj Steel for the further development in our machine. Yes. Okay. Thank you, Krishna. Thank you, sir. हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मेरा नाम है संदीप विश्राम घोले। मेरा स्टार्टअप नेम है संदीप प्यार ऑर्गेनिक। लोगो वगैरह सब मैंने रजिस्टर किया है। अभी मैं सीड का प्रोडक्शन करता हूँ ओनियन के, और अभी महाराष्ट्र, हाँ ओनियन सीड्स, यस ओनियन सीड्स का प्रोडक्शन करता हूँ। मैंने खुद ने एक वैरायटी डेवलप की है, उसका नाम है संदीप प्यार। उसका नेशनल अवार्ड वगैरह सब मिले, टेस्टिंग वगैरह उसका सब हुआ है। अभी उसको PPR AFR के लिए दिल्ली में अभी अंतिम स्तर पे उसको रखा गया है अभी। ओके ओके। और आप पुणे में करते हैं? ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Good morning, sir. This side Prerna from Prerna Gupta's Couture. I am into fashion industry since 13 years. I am producing a sustainable brand through ICR Nagpur. We are taking an element of natural color cotton, and I'm located at Nagpur. Okay, exactly. You are creating kind of textile. Yes, sir. We are using two elements like natural color cotton with using a normal cotton so that the product can be a little less weight than in general. And it is a rare product, so obviously we are going to cater it to the niche market, being the value is much more in terms of meter. It is like 600 rupees meter what we get. So obviously we are going to target the premium and the niche crowd. Okay, thank you, Brandon.
Good morning. This is Anant from Nasik. So I represent Anant Varsha Agro Technologies LLP. We have developed a microbial consortia, that is a mixture of 12 different type of microorganisms for improving the soil health. It is very cost-effective solution at just rupees 100. Farmer can improve his soil health of 1 acre of his land. Okay, that's interesting. It's organic. Thank you, Anant. Thank you. हेलो सर। हेलो सर मेरा नाम बहुसर शिंदे है और मैं फिलहाल एक न्यू इनोवेटिव हार्वेस्टर के ऊपर मतलब काम कर रहा हूँ और ये पेटेंट ग्रांटेड है और फिलहाल इसके ऊपर मैं पुणे में काम कर रहा हूँ। ओके, तो अभी आपका जो प्रोडक्ट है दैट्स अंडर रिसर्च, यू आर डेवलपिंग इट, अभी उसको आप नहीं सर, प्रोटोटाइप डेवलप हो गया है तो अभी ट्रायल चल रही है इसकी। ट्रायल में है। ओके, तो आप मतलब बेसिकली फार्म्स की जरूरत पड़ती होगी आपको। हाँ, ओके, उसके लिए जो गवर्नमेंट का कॉलेज है पुणे में वहाँ पे ट्रायल चल ट्रायल चेक, तो मतलब आप किस चीज के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, ट्रीज या फिर मतलब या क्रॉप्स, सब क्रॉप्स से ही है, मतलब इट्स नॉट फ्रूट्स। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मिस्टर शिंदे। Good morning, sir. Hello. Good Shall I morning. Your continue? voice is not audible. Okay. Is it audible now? Sir, Sir Rahul. your How voice are is not you? coming. Okay, sir. Take another one. I'll again come back. Good morning, sir. My name is Good morning. Saurabh. I'm the co-founder of Tara Agro-Tourism. So our project basically is we are encouraging to strengthen the local identity and promotion of farm products to our agro-tourism project. We are recently in the research and planning stage, and simultaneously we are working on the infrastructure development. Okay. And the project is in a small village in Shinoli in the Pune district. Oh, Thank you. great. Thank you, Saurabh. Hello. I'm really very sorry. I'm traveling. Yes. So can I speak? Yeah, please go ahead. Go ahead. We're all listening. Yeah. So I'm Krishna. I'm a founder of a brand called as Agati. And I'm cinema level. But we are designing from Khadi. We are a social impact brand. So all the products and everything are getting made by our artisans. So we have artisans from Gujarat. And where are you located? Sorry, I live in Mumbai only. Oh, in Mumbai. Yes, and currently we are working on Khadi along with natural dyes. So that's what we are trying to work on. And what is the raw material you use? Cotton. As of now, cotton. Yeah. Okay, thank you. Thank you, Krishna. Yeah. Good morning. Good morning. Yeah, please go ahead. Your voice was not coming. Now it is okay, voice. Yes, it's perfectly fine. Okay, myself Rahul Bhargava from Aqua LLP from Pune. Again, your voice is cracking somewhat. There is some internet connection glitch or something. So we can move on to the next person. If anyone is pending, please unmute and speak. Yeah, please. Okay. मैं पाटिल कांतिलाल जलगांव से हूँ। खेती में जो मैंने एक ट्रैप बनाया जो पेस्टिसाइड कंट्रोल करने के पेस्टिसाइड का कम से कम वापर करके इस्तेमाल करके हम खेती में उपज कैसे ला सकते हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रैप बनाया। उसका नाम मैंने इको पेस्ट ट्रैप दिया, उसका पेटेंट भी लिया मैंने। और एक छोटा सा इनोवेट एग्रो के नाम का एक कंपनी बना के अभी मैं किसान भाइयों को मेरा जो ट्रैप बनाया हुआ है तो वो भी मैं जैसे किसान का ऑर्डर आता है तो मैं उनको बना के देता हूँ मेरे घर से ही। एक छोटा सा काम चालू। और मेरा जो ट्रैप तो उसको विद्यापीठ में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने उसका सजेशन किया किसान लोगों के लिए। और
जो मेरी जो राहुल कृषि विद्यापीठ अदर केवी के और साथ में एग्रोवन जैसा जो पेपर है, तो उसमें जो मेरी स्टोरी आई, तो उसकी वजह से मेरा जो ट्रैप बना हुआ है वो किसानों के साथ में, किसानों को मैं पहुंचा सका हूँ। मतलब फैक्ट्री टू फार्मर इस बेस पे चल रहा है छोटा सा। प्लांट प्रोडक्शन और एग्री इक्विपमेंट में मेरा काम चलता है सर। एक छोटा सा कंपनी है। ओह, ग्रेट टू नो। आपका और अनंत सर का जो नासिक बेस्ड है, मेरे ख्याल से सॉइल इनरिचमेंट में जरूर कॉमन होगा, है ना? जी नहीं सर, मेरा प्लांट प्रोडक्शन में काम करता है, जो प्लांट प्रोडक्शन में हो गया। ओके। इंसेक्ट कंट्रोल। जो अभी कैसा है सर कि पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग के लिए सब लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कीट को कंट्रोल कर। ओके, समझ गया। गॉट इट। एक ऐसा है सर कि आप रस चूसने वाले कीटक जो इल्ली आते हैं उसको करने के लिए, और फ्रूट फ्लाई, ये तीनों जो घटक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए मेरा एक ट्रैप है। जैसे भी बाजार में जो ट्रैप मिलते हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग ट्रैप खरीदना पड़ता है, और मेरा ट्रैप एक ही जो जो इल्ली आती है वो, और रस चूसने वाले कीटक, इन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रैप रीयूजेबल है सर। ओके। और ओके, सबसे गॉट इट। एक ट्रैप की कीमत किसान भाइयों को 200 रुपए तक एक ट्रैप की कीमत जाती है सर। ओह, ग्रेट ग्रेट Patel sir. Yes, thank you. Yeah, good morning, sir. This Good is morning. Raj from Barsati Agrotech, based out of Solapur. Hmm. So, sir, what we do is we are into agri inputs and on-farm crop advisory services. Sir, India में on-farm crop advices बहुत है, but this whole market is unorganized. So we are trying to make it organized under one roof as Barsati Agrotech. So sir, हमारे खुद के agri inputs भी है, हम farmer को advisory service भी देते हैं, and next month we will be procuring their output as well. So this is a whole integrated chain. That's what we do, sir. मेरी एक जिज्ञासा है, आप फार्मर्स को एडवाइजरी सर्विस देते हैं, मगर क्या किस पैमाने पे, किस लेवल पे फार्मर्स एडवाइजरी सर्विस लेते हैं? क्योंकि जनरल फीडबैक है कि हिंदुस्तान में, मतलब नॉट पर से आपके ज्योग्राफिकल एरिया में, पूरे इंडिया में पर से में एडवाइजरी सर्विसेज लेने वालों की बड़ी कमी है, मतलब, और उनके अंदर मतलब पहली बात है कि रिसोर्सेज ही नहीं है, दूसरी है कि सब बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से, ओल्ड स्कूल तरीके से खुश हैं। मतलब इज इट अ बॉटलनेक आपके जॉब में? सब पहली बात तो मैं बताता हूँ कि एडवाइजरी सर्विस सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में वर्क करेगी, बिकॉज जो सीरियल क्रॉप है उनमें वर्क ही नहीं करेगी। अच्छा, सिर्फ हॉर्टिकल्चर में? सो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में है सर। लास्ट ईयर वी वेंट ऑन 200 एकर्स, मतलब 200 एकर्स एडवाइजरी सर्विस कर रहे थे। बिकॉज ऑफ सक्सेस रेट इट्स ऑलमोस्ट 100%. So this year onwards we will be on 500 acres. We have had one employee also. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Can I go ahead? Please, sir. We are waiting. So my name is Jayesh Mahajan. I'm textile engineer. Basically served this cotton value chain for around 35 years more. In this experience, I have gathered that there is a need of orienting the cotton production in line of the technical requirement of the textile industry. So we have adopted a methodology by the virtue of which we are pushing for the quality through backward integration from the stage of giners, and we are giving a pull for the good quality through channelizing the produced cotton bales, which is a value-added product, through e-auctioning platform. So if the farmers get the value commensurating with the quality of the cotton, in that particular case, the sustainability for going for good cotton and the cotton that the industry desires will move on. So that is the base of our product. Okay, I mean, but it is still in pilot stage. Do we have some success stories? If I tell you that because I was working as a nodal officer with the World Bank project Smart Cotton, which almost worked on the same principle, that was my brainchild, and I have put this forth in 2019, and we were able to
have the proof of the concept, as well as lot many cases we have seen that the orientation of the farmers towards the quality is still there. So basically we got the results, but as the government systems do not go the way the private industry should go, so I want to accelerate this particular idea through this private channel. Okay. Okay. Thank you, Jayesh sir. Yeah. Almost done, sir. I think so. Yes. Yes, please go ahead. I think I'm saying that I think all the startup has been introduced. Oh, thank you. Thank you, Uday, for providing this platform. Fortunate to have this brief interaction and introduction from all of the participants. My colleague Nikhil has joined here. My colleague Nikhil has joined here, and he's a nodal officer for government-sponsored schemes here in Mumbai. So Nikhil will be here. You can sit there because no, we are logging from Mumbai. Okay, thank you for giving me this opportunity. So here I'm going to represent the banking system for all of you. Okay, so you know your job best. I'm sure the product the product on which you are working and the methodology that you have adopted is perfect for you. मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि बताने के लिए कि आपको बैंक से जो उम्मीदें हैं, जो बैंक से जो अपेक्षाएं हैं, बैंकिंग सिस्टम से जो अपेक्षाएं हैं, मैं सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सारे बैंकों के बारे में, बैंकिंग प्रणाली के बारे में बात करूंगा कि आपकी इनके साथ जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, उस बैंकिंग व्यवस्था को समझने के लिए वो मेथोडोलॉजी क्या है. जैसे अभी जयेश सर बता रहे थे, ही वाज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, है ना. तो उस 2019 में he was able to substantiate it. और उसके बाद still we want to see some good success stories. Government of India through ICAR और through various channels ऐसे बहुत सी स्कीम्स चलाती हैं जिसकी एफिकेसी कई बार हमें बहुत साफ साफ नहीं दिख पाती है. उसका मेरे विचार से उसका कारण सिर्फ यही है कि हमको किस जगह पे पहुंच के किस बैंकिंग सिस्टम में किस स्टेज पे पहुंचना है और हमको किस जगह में किस चीज की जरूरत है, तो वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम पहले गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट के 3 तरह के स्कीम्स हैं सीधे सीधे, जो कि किसी भी किस्म के स्टार्टअप के लिए, चाहे वो एग्री स्टार्टअप है, कोई दूसरा स्टार्टअप है, उसके लिए काम करते हैं. एक की सीमा है 20 लाख रुपए तक, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसका नाम है मुद्रा लोन. दूसरा है स्टैंड अप इंडिया लोन, जिसकी सीमा है 1 करोड़ रुपए तक. ओके, द अपर लिमिट इज 1 CR फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन. ये 2 छोटे छोटे लोन है. आई एम श्योर कि आप लोग आने वाले टाइम में जिस स्केल पे काम करेंगे उसके इससे भी आगे आप चले जाएंगे. मगर यहाँ पे पहले मैं इन दोनों आई होप आई एम ऑडिबल. हेलो. Yes, you are audible. Yes, sir. थैंक यू. थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी रखेंगे, है ना, मोनोलॉग बिल्कुल नहीं लगना चाहिए. तो अगर मेरी कही हुई कोई बात ना आप तक पहुंच पाए तो आप में से आप स्वतंत्र हैं, आप एक एक करके उसके ऊपर कर सकते हैं. तो मैं छोटी व्यवस्था से बड़ी व्यवस्था तक जाऊं या बड़ी व्यवस्था से छोटी व्यवस्था तक जाऊं, आप बताइए. बड़ी से छोटे की तरफ आएंगे तो अच्छा. बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, फेयर एनफ. ओके, तो देखिए, आई रिप्रेजेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम. आई हैड अ स्टार्टअप ब्रांच. तो हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है MSME उड़ान प्रोडक्ट. ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है ये 50 लाख रुपए से लेकर के इट कैन गो अबाउट 50 CR पर. अब ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए. जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहता हूँ, आप सब में से DPIT रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. स्टार्टअप्स में, है ना? Yes, sir. DPIT registered. तो ऐसे भी हैं जो DPIT रजिस्टर्ड नहीं है? मेरा स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है. वेरी गुड, वेरी गुड.
तो स्टार्टअप लोन के लिए सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपको डीपीआईटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। डीपीआईटी मतलब डिपार्टमेंट बाई स्टार्टअप इंडिया की डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड डिपार्टमेंट होता है, उसमें एक स्टार्टअप का सर्टिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन होता है, वो होना होता है। तो इसमें आपको बैंक से जो सुविधाएं मिलेंगी, मैं सिर्फ एसबीआई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्यादातर नेशनलाइज बैंक के बारे में बात बताऊंगा कि आपका जो करंट अकाउंट होता है, आपका जो करंट अकाउंट होता है वो जीरो बैलेंस पे खुलता है। अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो आपका करंट अकाउंट जीरो बैलेंस पे खुलता है और 5 साल तक आपको टैक्स बेनिफिट्स होते हैं इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, ये दो चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप है तो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें स्टार्टअप के लिए आपका स्टार्टअप एक फंक्शनल स्टार्टअप होना चाहिए, आइडिएशन स्टार्टअप नहीं होना चाहिए। और उसका ऑपरेशनल रेवेन्यू अगर आना शुरू हो गया है तो 12 महीने के ऑपरेशनल रेवेन्यू आने के बाद ये जो मैंने आपको अमाउंट बताया है, इस अमाउंट तक की गवर्नमेंट गारंटी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। 50 लाख से इनिशियली 10 करोड़ तक की सीजीएसएस की योजना में आपकी ये गारंटी मिलती है, 50 लाख से 10 करोड़ तक के लिए। ठीक है, तो इस लोन को हम कहते हैं एमएसएमई सीजीएसएस, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टार्टअप स्कीम जो होती है उन सब के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप डीपीआईटी रजिस्टर्ड हैं, आपने अपना अपना एक्टिविटी शुरू कर दिया, ऑपरेशनल रेवेन्यू आना शुरू कर दिया, प्रॉफिट नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका रेवेन्यू आना शुरू हो चुका है और 12 महीने तक आपका ये चल रहा है, तो इस लोन के लिए आप एलिजिबल हैं। अब आप जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट बनाते हैं, अब जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, ये फिजिबल होनी चाहिए कि आप जो लोन मांगने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, आई एम श्योर दैट यू पीपल नो योर वर्क, द मेथोडोलॉजी, द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। अब इसको इन सिंक करने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था में लाने के लिए आप जो भी एकेडमिक रिपोर्ट बना के लेके जा रहे हैं वो बैक्ड होनी चाहिए जो बाजार की व्यवस्था है और आपके पास जो ऑर्डर्स इन हैंड है, जो आपकी पाइपलाइन है। मतलब अगर आप वहां पे बैठ के अपनी फाइल ना भी दिखाएं तो आपकी फाइल बोलनी चाहिए कि क्या है। आपने कहा कि जी फॉर एग्जांपल मैं अगले साल हम देखिए हमें चाहिए 1 करोड़ रुपए और अगले साल हमारी सेल हो जाएगी 2 करोड़ या 2.5 करोड़ या 3 करोड़ रुपए। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए लोन से 2 प्रकार का होता है। मेरे ख्याल से मेरी बात आप तक पहुंच रही है। द मोड आई एम यूजिंग इज इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। यस सर, यस सर, परफेक्ट। यस, हिंदी सर, हिंदी बोलो। तो देखिए लोन 2 तरह का होता है, एक होता है टर्म लोन और एक होता है वर्किंग कैपिटल। आप वर्किंग कैपिटल का अर्थ ये होता है, ये वो पूंजी होती है जो आपको अपना अपना व्यापार, अपनी व्यवस्था चलाए रखने के लिए लगातार जरूरत होती है। जैसे कि बहुत से लोग जो कि क्रॉप हार्वेस्टिंग में है, फ्रूट्स में, वो समझेंगे उनको लगातार उनको पूंजी चाहिए और उससे वो अपना रॉ मटेरियल लेकर के वो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। या किसान का जो केसीसी एक प्रोडक्ट है कि वो 6 महीने का शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए होता है, 18 महीने लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए होता है। तो उसी प्रकार से ये एक वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था है कि आप उस पैसे को लेते हैं और वो साइकिल होती रहती है। जब आपको आपका कैश सेल्स मिल जाता है वापस उसी अकाउंट में आता है और उसके पैसे को आप फिर यूज कर सकते हैं। तो आपका जो एक्टिविटी का जो लेवल है उसका एक सर्टेन पोर्शन आपका वर्किंग कैपिटल होता है, जो कि अगर मैं एवरेज बोलूं तो 25% तक। अगर आप ये कहें कि सन 2026 में सर मेरी सेल जो है 1 करोड़ की होनी चाहिए, तो एट द मैक्स 20 से 25 लाख का वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगा। अगर मेरी पिछली कही हुई बातें, 2 चीजें होती है, एक एकेडमिक गाइडलाइंस होती है और एक प्रैक्टिकल गाइडलाइंस होती है। एकेडमिक गाइडलाइंस मैंने आपको बता दिया है कि आप स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, आप 12 महीने का आपका ऑपरेशनल रेवेन्यू हो चुका है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल गाइडलाइन ये है कि आप जो प्रोजेक्शन बता रहे हैं कि सर मैं इतना करने जा रहा हूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझे प्रोबेबली बरसाती एग्रीटेक को लेके मैंने मेरी एक उत्कंठा थी, एक मेरी जिज्ञासा थी। मैंने बोला कि आप दे तो देते हैं बट व्हाट इज द फीडबैक। देन ही सेड कि 200 एकड़ पे वो ऑलरेडी सक्सेसफुली कर चुके हैं। दे ऑलरेडी हैव दिस 500 एकर्स प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन। एम आई करेक्ट सर? यस सर, टोटली। तो अगर इस चीज को आपका कोई एमओयू है, आपके पास कोई रिटन एग्रीमेंट है, ओके, तो आप जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं तो अगर ऐसा है तो दैट सब्सटैंशिएट्स इट, है ना। और ये चीज और फलीभूत हो जाती है और सक्सेसफुल हो जाती है अगर कोई पास का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसमें ऐसा किया गया है ना।
क्योंकि ज्यादातर जब हम बैंकर्स बाजार में निकलते हैं, जाते हैं, हम देखते हैं कि पेपर्स पे तो वो फिगर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर उनको सब्सटैंशिएट करने के लिए और पेपर्स नहीं है। मतलब पेपर्स में मैं बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक नहीं साउंड करना चाहता, मगर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, यू नो। ठीक है, am I करेक्ट निखिल? ठीक है ना? क्यों बहुत ढेर सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर ये मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, हमको इतना मिल जाएगा तो हम इतना कर लेंगे। देखिए, जो भी बैंकिंग अप्रोच, अब नहीं कहूंगा, जो लेंडिंग अप्रोच है, पैसा उधार देने में हमेशा कोई ना कोई कवर चाहिए। मैं इस समय आपको वो सारे कवरेज बता रहा हूं जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो मैं इस समय आपको स्टार्टअप इंडिया के बारे में बता रहा हूं, जो 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक की कवरेज देती है। तो उसके कवरेज के लिए आपको प्राप्त करने के लिए जो जो चीजें करनी पड़ेंगी वो मैंने बता दी है। और आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें कि कोई फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा हो, आप समझ रहे हैं? एडवाइजरी में आप कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। अब ये सर्विस इंडस्ट्री में हो गया, ठीक है। तो अब फाइनल प्रोडक्ट में मतलब कि आप एडवाइजरी दे रहे हैं और उसके बाद आपके सामने कोई एक बिल जनरेट हो जा रहा है जो आपको शायद आपकी सर्विस देने के बाद आपको पे करेंगे, ठीक है। तो ये पेमेंट मैकेनिज्म दिखना चाहिए, वो किसी एग्रीमेंट के फॉर्म में हो, किसी एमओयू के फॉर्म में हो, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। तो जब वो चीज उस पर हो जाती है तो ये जो इंफॉर्मेशन गैप है एक लेंडर के बीच में और एक बोरोअर के बीच में, वो कम हो जाता है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ठीक है। इस विषय में आप किसी और के कोई प्रश्न है या नॉन स्टार्टअप रिलेटेड कुछ है तो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क। एनीवन? सर माय क्वेश्चन इज कि ये जो लोन सैंक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है एंड टेनेचर क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट स्कीम के तहत होने वाला कोई भी लोन जो होता है वो सामान्य लोन से 1 या 2% महंगा होता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट रेट का एक सर्टेन पोर्शन होता है जो गवर्नमेंट गारंटी को जाता है। तो ये जो लोन है ये 11.5-12% से लेके 13.5% तक होता है, डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी क्या है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको थोड़ा सा कम मिल जाता है। ये हर बैंक का अपना अपना असेसमेंट होता है, आपका स्कोरिंग मॉडल होता है प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो मान के चलिए कम से कम अगर बहुत अच्छा रेट भी अगर किसी को इन तीनों स्कीम में मिलेगा तो 12.5% 12% के आसपास मिलेगा, और बहुत ज्यादा भी किसी को पड़ेगा तो 13.5-13.5% मिलेगा। थैंक यू सर। हाँ, और पूछिए सर। सर आपने एक सेंटेंस बोला कि 5 इयर्स तक टैक्स बेनिफिट रहता है स्टार्टअप्स को, बट सर DPIIT अंडर तो सिर्फ 3 साल का है, तो आई एम नॉट एबल टू रिलेट द पॉइंट। मैं समझा नहीं। DPIIT का सर्टिफिकेट जिन जिन स्टार्टअप्स को मिला है ना सर, उनको जस्ट इयर्स का टैक्स बेनिफिट है। सो बट आपने बोला कि 5 इयर्स का है, सो इन द विच स्कीम इज दैट? DPIIT 3 इयर्स ही है, 5 इयर्स शायद उसमें निकल गया, 3 इयर्स ही है। ओके ओके, ठीक है। 3 इयर्स, 3 इयर्स DPIIT फॉर 3 इयर्स। 5 इयर्स शायद इंग्लिश में बोल रहे हो, 3 इयर्स है। Thanks for correcting me. That is all 3. Sir, thank. And I'm having one more question, sir. So initially startups sir, one of the struggle face करते हैं कि as in SISFS का हमें लोन सैंक्शन हो चुका है, बट हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है। As I told you, we are into inputs also, and we want to expand into output also. But CC लेने में सर हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि they are asking for 2 years का balance sheet and P&L, but we have registered last year itself, though we have clocked more than 1 CR revenue, but they are not able to ready to give us the loan without security. So how shall we tackle this particular point? अगर आप रिसेंटली रजिस्टर्ड हैं और आप स्ट्रेट अवे किसी ऐसी व्यवस्था के तहत लोन सीधे 2 करोड़ चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि पिछले साल रजिस्टर्ड, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई किसी बारे में वो। देखिए, मैं जो गवर्नमेंट, अब लेंडर्स अप्रोच मैंने अभी कहा था, लेंडर को एक बैकअप चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन जो होता है वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है, और SBI या कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक पर्सनल लोन सिर्फ सैलरीड क्लास को देता है, सैलरीड वो भी गवर्नमेंट सेक्टर, PSU सेक्टर। उसके सिवा जो अनसिक्योर्ड, अगर पूरी बैंकिंग व्यवस्था को भारत की आप समझिए तो NBFC या जो लोन शार्क्स होते हैं वही अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, जो कि बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, 18% 20%, सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं, कॉर्पोरेट से भी, राइट, सक्सेसफुल कॉर्पोरेट से भी, ठीक है ना।
उसके सिवा जो आप जिसको हम सब्सिडाइज लोन्स कहते हैं या लो कॉस्ट लोन्स कहते हैं, जो अमूमन पब्लिक सेक्टर बैंक्स देते हैं या बड़े बैंक्स देते हैं, जो आप हाउसिंग लोन से लेकर के बिजनेस लोन तक होते हैं 9% से लेकर 11-12% तक, तो यकीन मानिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सारे लोन सिक्योर्ड हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल फिगर्स कह रहे हैं सारे लोन। अब हाउसिंग लोन में आप किसी ने लोन दिया तो उसमें सिक्योरिटी घर है, कार लोन में दिया सिक्योरिटी कार है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो मैंने बताया, मैं इसलिए आपको साफ साफ बता रहा हूं कि वो योजनाएं बता रहा हूं जिसमें कि आपको अपफ्रंट सिक्योरिटी नहीं देनी है। तो अगर SC/ST कैंडिडेट या कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसको 1 करोड़ तक प्रोजेक्शन के ऊपर, जो मैंने बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं ठीक से, तो 1 करोड़ तक मिल जाएगा। और अगर वो स्टार्टअप MSME उड़ान में स्टार्टअप तक है और आपको चाहिए, तो अगर आपने 12 महीने का ऑपरेशन रेवेन्यू कर लिया है और आपके प्रोजेक्शन से लाइन, आप मेरी बात समझिएगा, 12 महीने के ऑपरेशन रेवेन्यू के बाद आपकी सेल हो रही है 1 करोड़ और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि साहब ये हमको 2 करोड़ मिल जाएगा, मगर फिर आपके पास उतने प्रोजेक्ट, उतने प्रोडक्ट, मतलब आपका उतना इवॉल्व है और मार्केट में उतना आ चुका है, ये आप साबित कर पा रहे हैं अपने कागजों से, और आपके पास उतने ऑर्डर्स इन हैंड है और आप दिखा रहे हैं कि देखिए साइकिल चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि हर बार जब जो भी आदमी पहली बार हिमालय पे गया था उसको चढ़ने में बहुत तकलीफ हुई होगी, उसके बाद लोग आसानी से हिमालय पे चढ़ने लगते हैं। तो ये तीनों ही स्कीम बहुत नई है ना। मुद्रा लोन तो चलिए पुरानी हो गई है, स्टैंड अप इंडिया भी थोड़ी और पुरानी हो गई, बट दिस MSME उड़ान जो है ये अभी तक 1 साल 1.25 साल पहले ही लॉन्च हुई है ना। तो अभी तक ये बहुत लोगों तक, शायद बैंकर्स तक भी इनफैक्ट, क्योंकि स्टार्टअप स्पेशलिस्ट ब्रांचेस नहीं होती है, कन्वेंशनल ब्रांचें होती है, वो SME की तरह ही देखती है। मगर एक बार जागरूकता आ जाएगी, 1-2 लोन होंगे, तो मैं इसलिए ये इन्फॉर्मेशन गैप नहीं रखना चाहता। आपका वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनलाइन होना चाहिए। आपने 1 करोड़ का सेल कर दिया, बहुत अच्छी बात है, मगर आप कहते हैं कि 1 करोड़ के सेल पे इन्हीं लोगों से मेरे पास 4 करोड़ के ऑर्डर है, तो आपको वो 50 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक का वर्किंग कैपिटल लोन हो चाहे कैपेक्स का लोन हो, अगर आप उसका फिजिबिलिटी दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं, है ना, तो मुझे नहीं लगता आपको रॉबस्ट, आपको उनके वो जो, इट कैन बी एनी बैंकर, आई एम श्योर, आप प्रयास कीजिए कि किसी नेशनलाइज बैंक के पास जाइए और उसके स्पेशलाइज यूनिट के पास जाइए। अभी क्या होता हो गया कि कमेटी सेटअप, या हर बैंक में क्या होता है, SME को देखने वाला एक आदमी होता है, स्टार्टअप को देखने वाला एक आदमी होता है। तो सबसे पहले तो इंश्योर कीजिए कि आप जिसके पास जा रहे हैं इज ही द राइट पर्सन, या उनसे पूछिए था मैं किन से किस, जैसे स्टार्टअप्स के लिए SBI ने 5 ब्रांचेस बनाई हुई है, तो अगर कोई स्टार्टअप का आदमी किसी CCG ब्रांच में चला जाएगा जहां 50 करोड़ से होता है, तो वो साइकोलॉजी विल नॉट कोप अप, ठीक है ना। तो आप अगर किसी स्टार्टअप को, तो स्टार्टअप वाली जगह पे जाइए और CGSS से आप अपग्रेड होकर के जाइए और इंश्योर कीजिए कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है आप उनको पूरा कर रहे हैं और आपके पास आप फंक्शनल रेवेन्यू में है, तो वो आपको लोन दे देंगे। बैंकर्स हमेशा ढूंढते रहते हैं हम ऐसी जगह पे लोन दे। आपको जैसे मैं आंकड़े बताता हूँ, मुद्रा लोन देने में, स्वनिधि लोन देने में, स्टैंड अप इंडिया लोन देने में, आपको पता है कि 10-15-20% कई बार NPA भी है बहुत बैंक्स में, उसके बावजूद भी बैंकों को बैंक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट गारंटी है। अगर कोई स्टैंड अप इंडिया लोन और कोई मुद्रा लोन, बैंक ये दिखा देता है कि ये लोन, ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, ये एक्टिविटी 1 साल तक चली, 1 साल तक चलने के बाद, है ना, और इसके अंदर हमारे स्टाफ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये 3 चीजें या 4 चीजें इंटरनल होती है, बैंक को करनी पड़ती है, तो एक समय के बाद वो जो जितनी भी गारंटी होती है गवर्नमेंट दे देती है ना। तो अगर आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी और चीज के लिए जाएंगे, तो जिसमें कि कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक किस्म का कोलैटरल है जो 1-1.5 साल 2 साल बाद रियलाइज हो रहा है। तो अगर आप CGSS गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत है कि आप फंक्शनल स्टेज में होना चाहिए बिजनेस, ऑपरेशनल रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बाजार में आ चुका है, आपके पास ऑर्डर्स इन हैंड है और आपको उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए इस पैसे की आवश्यकता है, और वो ऑर्डर्स किसी स्तर पे कहीं ना कहीं कंप्लीट हो ही रहे, है ना, और उस प्रोडक्ट के लिए बाजार में जगह है। तो अगर इसका 19-20 हो सकता है, मगर ऐसा नहीं होगा कि प्रोबब्ली आप जिस चीज के लिए वहां पे जाने की प्रयास करें, तो आई एम वेरी पॉजिटिव एंड वेरी होपफुल, क्योंकि हम ऐसे प्रपोजल्स ढूंढते रहते हैं और हमें 20 में से 10 प्रपोजल्स ऐसे मिलते हैं कि जो कि अभी ऑपरेशन स्टेज में नहीं आए हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ, इट इज नॉट अबाउट SBI, इट इज अबाउट अक्रॉस ऑल द बैंकिंग सिस्टम। एक चीज जिसे कहा जाता है डेट इक्विटी, मतलब
आपकी इक्विटी क्या है, आपका पोर्शन कितना लग रहा है और उधार कितना है। हमेशा हर लेंडर इंश्योर करता है कि आपका पोर्शन पहले लगे। अगर मान लीजिए 100 रुपए का प्रोजेक्ट का आपकी 100 रुपए की कीमत है और 25 रुपए आपके लगने हैं, 75 रुपए बैंक के लगने हैं या किसी भी लेंडर के लगने हैं, इवन एनबीएफसी, तो वो ये इंश्योर करेंगे आपके 25 रुपए इस बिजनेस में लग गए कि नहीं, तभी हम अपने पैसे लगाएंगे। तो ये बहुत बोलते हैं डेट इक्विटी, मगर होता है इक्विटी डेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्यवस्था चलती है। मेरे ख्याल से मैं आई एम श्योर दैट आई एम क्लियर टू ऑल। यस श्योर। तो सर ये आइडियल इक्विटी टू डेट रेशियो क्या होना चाहिए? देखिए आइडियल कुछ नहीं होता है, वो आपकी एक्टिविटी के मुताबिक होता है, मगर फिर भी मैन्युफैक्चरिंग में हम जो इसको लेते हैं आइडियल नहीं कहते, उसको मैक्सिमम कहते हैं। दैट इज डेट इक्विटी 3:1, मतलब मैक्सिमम डेट इज 75%, है ना। आइडियल तो आपको जस्टिफाई, आप खुद जस्टिफाई करेंगे ना कि सर दिस इज माय प्रोजेक्ट, यू नो योर बिजनेस बेस्ट। राइट। वो जो लिवरेज, मतलब कि आपको इतना लोन आ जाने से आपकी सेल इतनी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी मेरे पास आए कि सर इस साल मेरा 2 करोड़ का मेरा काम हो गया, मगर सर आप ना मुझे 20 करोड़ का लोन दे दीजिए, 2 करोड़ की सेल हो गई, तो मेरी सेल अगले साल 60 करोड़ हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, तो 9 out of 10 केसेस nobody will believe it। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? 11 out of 10 सर। ठीक है, तो अगर वो कहे कि सर मेरा 2 करोड़ का बिजनेस हो गया है सर, अगर मेरे को सर 50 लाख लोन मिलेगा तो अगले साल मेरा 3.5-4 करोड़, 3 करोड़ 3.5 करोड़ हो जाएगा। दैट इज डूएबल। उसके बाद फिर आप उसको जस्टिफाई कीजिएगा, देखिए कि आपको, मेरे को इतना लोन मिलेगा, मेरे को इतना प्रॉफिट आ गया, मेरा इतना और अपना इक्विटी डालूंगा, तो वो मतलब मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम 75% से ज्यादा अब मिलना बहुत मुश्किल होता है, नहीं मिलता है ना। तो आप उसके, अब साइकोलॉजिकली देखिए, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इन्फॉर्मेशन गैप ना रहे। हम मेंटली साइकोलॉजिकली उस पाथ पे हो। एज अ बैंकर आई वांट टू साउंड एज योर कंसल्टेंट, एज योर एडवोकेट, नॉट एज अ ब्यूरोक्रेट और रेगुलेटर कि आपको ये बताऊं ये काम नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूं कि आईसीआर ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके आई एम सो थैंकफुल टू देम, तो वो हम मनोवैज्ञानिक मंच या एक साइकोलॉजिकल एक अप्रोच तय कर सके, जिसमें कि ये हम निर्धारित करें कि कोई बैंकर की तरफ से या बोरोवर या कस्टमर की तरफ से कोई गैप ना हो। वो जो इन्फॉर्मेशन गैप है जो, उसको हम पूरा करना है। ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। तो दिस इज अ केस ऑफ एमएसएमई उड़ान स्टार्टअप इंडिया। इसके बाद एक स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एक अलग प्रोडक्ट है, स्टैंड अप इंडिया एक अलग प्रोडक्ट है। स्पेशली द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे एंड एससीज एंड एसटीज के लिए ये बनाया गया है, जिसमें कि 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की का ऋण दिया जाता है, का लोन दिया जाता है। अब आपको एक चीज बताता हूं, स्टैंड अप इंडिया के लिए हर साल जितना भी बजट एलोकेटेड पैन इंडिया सारे बैंक को किया जाता है, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं राइटफुल कैंडिडेट्स के लिए। तो हम हमेशा स्ट्रेटेजाइज करते रहते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हम, क्योंकि देखिए जब भी बैंक लोन देगा तो पहली चीज ये देखेगा कि डुएबल है, मतलब हम लोन दे रहे हैं वापस आएगा कि नहीं। और स्टैंड अप इंडिया इकलौता ऐसा लोन है जो कि आपके प्रोजेक्शंस पे दिया जाता है, आपके करंट एक्टिविटी के ऊपर जो प्रोजेक्शन है उस पर दिया जाएगा, आपके पास्ट रिकॉर्ड पे नहीं दिया जाएगा। तो अभी जैसे किसी ने पूछा था 2 साल की बैलेंस शीट मांगी गई है, तो देखिए स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए बहुत सरल परिभाषा है कि आप, पहली चीज जो मैंने बताया एससी एसटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। दूसरी परिभाषा ये है कि 1 साल से पुराना यूनिट नहीं होना चाहिए। अगर जैसे आज फॉर एग्जाम्पल आज तारीख है 19 दिसंबर, तो इट शुड नॉट बी ओल्डर देन जनवरी 24। ठीक है, आपकी एक्टिविटी जो है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुकी हो और उसके ऊपर आपका प्रोजेक्शन होना चाहिए। इट कैन बी अ कैपेक्स, इट कैन बी अ टर्म लोन, इट कैन बी अ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, और ये 1 करोड़ रुपए तक के लिए ये योजना दी जाती है। और इसमें भी सूटेबल कैंडिडेट्स मिलने के लिए बैंक स्ट्रगल करता रहता है। मैं मुंबई जैसे शहर के बारे में बात कर रहा हूं, तो आई होप टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज में और गांवों में तो उसकी बहुत कमी होगी। सबसे पहली चीज होती है कि सूचना की हमें मालूम क्या होना चाहिए, स्टैंड अप इंडिया लोन किस व्यवस्था में, किस प्लेटफॉर्म पे दिया जा सकता है। तो ये सारे नेशनलाइज बैंक्स को करना होता है और वो दे लुक फॉर द राइट कैंडिडेट्स। ठीक है, तो Sir, sorry to interrupt, but then from the government point of view, it is collateral free loan, right? But then that is what whenever I said, it is collateral free.
But It is then collateral. whenever I talk to bank, they are like कि नहीं आपको तो collateral रखना ही पड़ेगा. मतलब जब गवर्नमेंट ही schemes बोल देती है कि ये वो प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ कैंसिल हो जाता है. They like the idea, they like the projections and everything. But ultimately banks ask for collateral. मतलब जब अगर collateral डालना होता है तो there are so many other ways to get a loan, right? But without नहीं, collateral अगर I'll tell डालना you. है मैम आपका लोकेशन कहाँ पे, कहाँ किससे बात कर रही हैं आप? तो आई लिव इन मुंबई बट मेरा यूनिट जो है वो गुजरात में है, मांडवी में. तो मैं वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई जो वहाँ की बैंक है क्योंकि दे हैव टू फिजिकली विजिट द यूनिट, राइट? सो आई अप्रोच देम एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लाइक कि आपको कोलेटरल तो रखना ही पड़ेगा. एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज या गवर्नमेंट स्कीम से इसमें सब्सिडाइज कोलेटरल गवर्नमेंट करनी नहीं गारंटी. आई टेल यू, देखिए कोलेटरल दो तरह का होता है. एक अपफ्रंट देने वाला, एक लोन. जैसे आपने लोन लिया और एक मशीन खरीद ली, ठीक है ना, तो वो मशीन जो है वो बैंक को हाइपोथिकेट हो गई, वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई. तो या तो आप प्रोबेबली आप स्टार्टअप है मैडम, यस यस यस. और आपका जो यूनिट है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. हाँ मतलब सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन गुजरात. और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है. हाँ राइट राइट राइट. नो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. मुझे खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बाकी सब जो ऑपरेशनल यूनिट है वो वहाँ पे सेटअप करना है. तो ये तो, और आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? अगस्त 2024. हाँ, अगर आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, यूनिट आइडेंटिफाइड है, और आप 1 करोड़ से कम मांग रही हैं, तो आपको अपफ्रंट कोलैटरल तो नहीं देना है. अब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिसाइजली मैंने नहीं देखा है, उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी है, क्या है, कैसे. बट प्राइमा फेसी 1 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए आपको, अब जो भी स्केल अप करके दे रही, जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आपका, है ना, जो भी आपका प्रोडक्ट है, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन ऑफ प्रोडक्ट, आई एम द मैन फ्रॉम बैंकिंग. तो मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है इफ इट इज इन लाइन विद द थिंग्स यू आर डूइंग, है ना. और आप मेरे ख्याल से स्टैंड अप इंडिया के लिए 1 करोड़ तक के लोन के लिए आप सुटेबल हैं. बस आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आप उसको रिविजिट कर लीजिए एक बार, और जो लाइन ऑफ एक्टिविटी है और जो जिस स्केल पे अभी आप ऑपरेट कर रही हैं, आप समझ रही ना. जैसे आपने एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक दिन में, जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, उसमें 20 यूनिट बन सकती है ना. तो आप 300 दिन काम करेंगे तो 20 तो 300 गुणे 20 यानी 600 यूनिट आप बना पाएंगे. मगर आप प्रोजेक्शन लेके आएंगे जी हम 1200 बना के बेच देंगे. यू गेटिंग माय पॉइंट मैम? Got it. So is है ना. there any way that if we send you a project report and you can review it, is it possible? That is possible, but I can only act as a consultant, क्योंकि I am based in Mumbai, है ना. तो वहाँ की ज्योग्राफी के जो चीज होते हैं, वहाँ की जो चीजें, प्रोबेबली वहाँ का लोकल गाइडलाइंस क्या है या उनके इंटरनल बेंचमार्क्स क्या है, वही बता पाएंगे. तो आप उदय जी से मेरा कनेक्ट ले लीजिएगा, है ना. इफ यू आर मुंबई बेस्ड तो आप मैं आपको उनसे मेल आईडी मिल जाएगा. वी कैन ऑलवेज स्पीक अबाउट सच थिंग्स. ओके Okay. Thank you, sir. तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपने बिजनेस को जानना, और उसके बाद क्या. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब मैं लेंडर्स अप्रोच बता रहा हूँ, है ना. जो उधार देने वाले की वो होती है, वो ये भी सोचते हैं कि अगर आप कहीं, उनको ये समझ में आता है, ये आपकी बात से मुझे ये बात समझ में आई. लास्ट मीटिंग में आईडीएफसी बैंक था और एचडीएफसी बैंक था. उन्होंने एक बात कही थी कि हमेशा प्लान भी पूछते हैं आपसे, हमेशा ये पूछते हैं अगर आपको लोन नहीं मिला तो. अगर उनके अंडरराइटिंग में बात समझ आती है, अगर इनको लोन नहीं मिला तो और उनकी यूनिट बंद हो जाएगी. तो ये भी बहुत नेगेटिव अप्रोच होता है एक लेंडर के लोन देने के बारे में. मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ रहे हैं ना. यस सर. तो आपको ये बताना पड़ेगा, देखिए आप लोन नहीं भी दोगे तो काम तो हमारा चलता रहेगा, है ना. तो इट हैज टू बी अ पॉजिटिव एंगल कि अगर ये इतना लोन इन्फ्यूज हो गया तो हम स्केल अप हो जाएंगे 20%, 30%, 40%, 50%, 100%. यू गेटिंग इट. बहुत से प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि ये वो कहते हैं कि सर ये तो हमारे पास इतना ऑर्डर है और हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो सर हम क्या कर पाएंगे, तुमको लोन तो चाहिए इतना, है ना. तो आप कहिए देखो ऑर्डर है हमारे पास, हम इतना नहीं कर पाएंगे, हम आधा कर लेंगे डिलीवर. आई होप आई एम क्लियर टू ऑल. यस सर. है ना. तो ये हमेशा है ना, ये इंटरनल पैरामीटर्स जो होते हैं बहुत क्लियर होते हैं कि अब ये कभी मत
दिखने दीजिए, या कभी ऐसा मत सोचिए, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको ये कि अगर ये लोन नहीं हुआ देन वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव और गो फर्दर। ठीक है, तो प्लीज इंश्योर इट कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो उसके अंदर इनबिल्ट स्ट्रक्चर ये हो कि अगर आपको लोन नहीं भी हुआ तो ऐसी व्यवस्था है, यू हैव अ प्लान बी, यू हैव कि आपको इक्विटी सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, इन्वेस्टर आ सकते हैं, या आपको एक हाई कॉस्ट सिक्योर लोन मिल सकता है, आपका बिजनेस सस्टेनेबल है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द गाइडलाइन जो कि हमें स्टार्टअप्स के लिए या स्टैंड अप इंडिया के हायर साइड के लोन जो होते हैं 80 लाख, 90 लाख, 70 लाख, 60 लाख, उसमें दिमाग में रखना चाहिए, एक किस्म का प्लान बी या प्लान सी इसको कहें। Am I clear? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. Now we'll talk about Mudra loan. Recently, the limit has been revised from 10 lakhs to 20 lakhs. Okay. तो Mudra loan is identical to Stand Up India loan, बस इसमें अंतर यही है कि ये सबको मिल सकता है, ये किसी भी प्रकार के उसमें कर सकते हैं। निखिल, मेरे ख्याल से प्लीज यू स्पीक अबाउट मुद्रा। निखिल, माय कलीग इज हियर एंड ही विल स्पीक अबाउट मुद्रा लोन। निखिल। गुड आफ्टरनून गाइस। मुद्रा लोन के बारे में ऐसा है कि एकदम सही नया यूनिट है, थोड़ा सा आपका कुछ बिजनेस का कोई आपका एक्सपोजर नहीं है, इवन दो यू आर एंटरप्रेन्योर्स, बट अपनी कभी बिजनेस शुरुआती है तो मुद्रा लोन एक बेस्ट लोन है कि आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। मुद्रा लोन में जो भी है गारंटीज ऑल आर सेम, जो भी है 10 लाख 20 लाख। अभी शुरुआत में जो मुद्रा लोन रिवाइज हुआ है इस फॉर एग्जिस्टिंग मुद्रा बोरोस जिनका लिमिट ऑलरेडी 10 लाख है, उसको अभी 20 लाख तक कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जितना भी है जो अपना बिजनेस लोन में वो सेम ही रहेगा मुद्रा में। मुद्रा का जो भी लोन है उसमें कोई एलिजिबिलिटी है, उसमें कोई वुमन बोरोवर चाहिए या SC/ST ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, एनी कैन अप्लाई फॉर मुद्रा लोन। एंड मुद्रा लोन में जो भी आपको बेस्ट पार्ट वही रहता है कि आपको जो भी है मार्जिन वो थोड़ा कम लगेगा। बाकी आपको जैसे कि आपको 20 लाख का या 25 लाख का लोन लेना है तो आपको 15% जो भी मार्जिन आपको लेना पड़ता है, इवन दो वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन उसमें जैसे कि 20 लाख का मशीन है तो आपको एटलीस्ट 5 लाख या एटलीस्ट 4 लाख तो आपको जो भी है आपका मार्जिन मनी रहता। तो मुद्रा लोन में आपको शुरुआत के जो भी वेरिएंट है जैसे कि तरुण है, किशोर है, अभी जो तरुण प्लस आया है, तो उसमें आपको एकदम स्मॉल स्केल पे अगर चालू करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर मुद्रा। और इसमें जो भी गारंटी है CGFMU में गारंटी बोलते हैं, वो आपको अपफ्रंट नहीं लिया जाता। जैसे गारंटी है आप पहले लोन दिया जाता है देन वो गारंटी का आपको डिमांड हो जाता है। तो बाकी लोन में एक रहता है कि आपको शुरुआत में ही गारंटी फी पे करना है। इसमें जैसे आपने इस महीने में लोन लिया है दिसंबर में तो गारंटी फी आपको फरवरी मार्च वगैरह में और गवर्नमेंट डिमांड करता है वैसे हम पे करते हैं। कस्टमर बॉन्ड ओनली, बट या जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोन है कि आपको पहले गारंटी फी पे करना है देन वो डिसबर्समेंट होता है। ये लोन में कैसा है कि आपको डिसबर्समेंट होने के बाद हम गारंटी फी लेते हैं, तो ये इसका बेस्ट पार्ट। अच्छा, मैं आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी हम कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए लोन करते हैं तो उसका लोन का जो कि कभी मालूम नहीं होगी, बोली भी नहीं जाती है कि उसका, चूंकि उसके अंदर प्रीमियम इनबिल्ट होता है तो उसका इफेक्टिव रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई व्यवस्था कि आपको कोई सस्ता लोन मिल रहा हो, वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या फिर बहुत सी सब्सिडीज होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, एग्री में होती हैं। आई एम श्योर कि ICAR के प्लेटफॉर्म पे आपको उनका एक्सेस मिलेगा। और तो हॉर्टिकल्चर से लेकर के ये पॉली हाउसेस से लेकर के और अभी सोलार में बहुत सी सब्सिडीज आ रही हैं तो मिल रही है। तो आप प्रयास कीजिए कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग अ लोन डोंट टेक अ लोन। आप कैलकुलेट कीजिए कि इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी आ रही है। 12-13%, 14%, 13% इस किस्म की जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो अगर ये आपको, मेरे ख्याल से अगर आप अनसिक्योर्ड लोन से तुलना कीजिए बाजार में जो मार्केट लोन होता है उससे तो बहुत सस्ता है, बट स्टिल आपको फाइनेंशियली अवेयर होना चाहिए कि अगर आपने ये एक सस्ता लोन लिया और एक महंगा लोन लिया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, आपके रेवेन्यू सिस्टम पे इसका कितना फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से उदय जी, prima facie I have cleared the broader aspects of products that the banking system offer. Okay. So basically, we can have a Q&A now.
If anyone Yeah, has please. questions like any doubt in Mudra loan, any doubt in any other aspect in terms of banking, अगर आपके कोई क्रेडिट जो आपका करंट अकाउंट है उसके रिगार्डिंग भी कुछ टेक्निकलिटीज है जो आपको किसी और बैंकिंग के इश्यूज रहेंगे तो भी चलेगा, तो सर यहाँ पर आपको हेल्प कर सकते देखिए, हैं। मैं अभी रेडीली आपको रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं दूंगा, मगर मैं आपको अप्रोच ओरिएंटेड बात बता दूंगा यस कि ये किस विषय में होगी और आपको कहाँ पे जाना है। यस, Sir, बिकॉज हर am I बैंक audible? का पॉलिसी अलग रहता है। यस, हमें या कंटिन्यू। Yeah. एक और लोन है, एसबीआई का प्रोडक्ट है, उसका नाम है एएल। एक सेकंड उसके बारे में समझ लीजिए। मेरे ख्याल से ये हमको प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर लेना चाहिए। देखिए, दिस फॉर यू, जस्ट 2 minutes। Where I can see most of the are agri entrepreneurs. So हमारा एक प्रोडक्ट है एग्री एंटरप्राइज लोन, वो लॉन्च हुआ था 23 मार्च में। तो उसमें जो भी है आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है या भी कुछ एनीथिंग दैट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, तो उसमें आपको लोन मिलता है। इसका भी सेम एज अ क्राइटेरिया है। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 लाख अप टू 10 CR, उसका जो भी है प्रोडक्ट है। आपको उसमें लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट का जो भी अभी का जो एजेंडा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये लोन भी आपको एनी एग्री कमर्शियल ब्रांच हमारे पूरे महाराष्ट्र में है, तो वहां पे आपको ये थोड़ा सा मतलब मुद्रा एंड एसबीआई, तो ये तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, लेकिन ये प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो एनी कवरेज जो भी आपका एसबीआई मुद्रा में नहीं होता है, यू कैन गो थ्रू दिस, बिकॉज इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा लोअर साइड में है। जैसे कि आपको अगर 12% में आ रहा है तो ये 11 में ये आपको विथ गारंटी फी कवर हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट्स के भी थोड़ा आप हमारे वेबसाइट पे भी थोड़ा देख सकते हो, उसमें जो भी आपके एक्टिविटी है वो कंसीडर हो रही है नहीं हो रही है, यू कैन लुक एट, उसमें जो भी एलिजिबल एक्टिविटीज है आपके वो दिए गए हैं। ठीक है, अदर देन दैट अगर आपका इससे भी एक्टिविटी नहीं है जिसमें, तो आप यू कैन कनेक्ट विद अस, हम उसको ट्राई करेंगे कि आप किसमें आपको वो लोन है वो किस एलिजिबिलिटी में हम बैठा सकते हैं, या फिर हम अपना जो लिस्ट है वो उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, एएल और ये एसबीआई की साइड है। या तो मेरा डाउट दो चीजों के लिए था। अभी मेरा जो स्टार्टअप है दैट इज जैसे मैंने बताया वेस्ट वैलोराइजेशन में है। तो वेस्ट वैलोराइजेशन में हम लोग ये दिखा सकते हैं कि वी आर हैविंग सम और द अदर काइंड ऑफ सोशल इम्पैक्ट। पहले तो फिशरी सेक्टर में है, तो वी आर गिविंग फिशरमैन अ हायर वैल्यू फॉर देयर वेस्ट। ओके, जो भी वेस्ट उनके पास है उसके लिए वी आर पासिंग दैट एडवांटेज ऑन टू देम फॉर द बेनिफिट। तो उस केस में are we as a startup eligible for CGT SME schemes, or are we also eligible for CSR funds in some case? See, CSR funds are like, let me tell you, I mean, depends on the organization to organization. These are very discretionary. उनको उतना करना होता है, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, बड़े एंड ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना, तो these are very discretionary, है ना। तो उसके ऊपर probably I'm not the right person to comment। मगर मैं आपको इसमें CGT MSE में बात करूं तो आप एक काम कीजिए ना प्लीज। अब प्लीज मुझे क्योंकि मैं तुरंत इसमें आपका बिजनेस मॉडल इतनी जल्दी समझ नहीं सकता हूँ। उदय सर, प्लीज गिव मी माय कनेक्ट, मेरा मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच के अंदर बता दूं कि ये ठीक है ना। आई वर्क ऑन दैट, आपको प्रिसाइज बता दूंगा देख करके ना, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा भी नहीं कि ब्रॉडर एंगल वाली आप सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल है आपका। आप उदय सर से मेरा कनेक्ट लेकर के मुझे अभी भेजिए, तो आगे में हाँ मैं मतलब 1 आध घंटा मैक्सिमम पता कर दूंगा। श्योर सर्टेनली। और मेरा एक सवाल है, मैं ऋषभ खेरडे बोल रहा हूँ। बोलिए ऋषभ जी, अमरावती से। हाँ यस सर, तो मेरा शेल्फ लाइफ विषय में जो हम जो वेस्टेज को रोक रहे हैं, फार्मर्स के जो प्रोड्यूस निकलता है 30% वेस्टेज को रोकना चाहते हैं। फ्यूचर में हम इसका कंसंट्रेट पाउडर भी रेडी कर रहे हैं, तो अभी हमें वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाना है साथ में। हमारा अभी 36 लाख रेवेन्यू है हर साल का। ओके, हाँ, तो हमें अभी सप्लाई चेन के ऊपर ही काम चल रहा है, यानी कि फार्मर से लेना, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाना, यूनिट के माध्यम से हम रेंट पे लिए आए यूनिट, उसके माध्यम से प्रोसेस करके आगे फ्रूट सप्लाई कर रहे हैं। राइट, डेटा और डेटा साइंस का यूज करके, जैसे कि मार्केट की 10 साल की स्ट्रेंथ पता है हमें, उस डेटा के हिसाब से
मार्केट को रिक्वायरमेंट है, वहाँ फ्रूट सप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है। इसके रिकॉर्डिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाना है, साथ ही कंसंट्रेट जो 30% फ्रूट वेस्टेज जाता है, और हाँ साथ ही हाँ इंडिया में जिस जगह हम फ्रूट प्रोडक्शन कर रहे म्हणजे यानी सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ के कोल्ड स्टोरेज को भी कनेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ हमारा माल स्टॉक में रहेगा तो हम वहाँ के रिटेलर को फ्रूट सप्लाई कर सकते हैं और वो वेस्टेज रोका जा सकता है सर। वेरी गुड। तो इसके लिए तो सर हमें अभी इसको हम स्टैंड अप इंडिया के अंदर नहीं बिठा सकते, या कोई गवर्नमेंट फूड मैंने फ्रूट प्रोसेसिंग की यूनिट के लिए सब्सिडाइज कुछ लोन मिलते हैं, जैसे मैग्नेट के अंदर आता है, कई क्लस्टर के अंदर आता है, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इसको हम कैसे बिठा सकते हैं सर? आपकी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब चूंकि आप यू आर बेस्ड एट अमरावती, तो राइट सर। महाराष्ट्र को लेकर के इस किस्म के मुंबई में हमारे पास तो फूड प्रोसेसिंग या शेल्फ है, हमारे पास एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स लोन का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बताया। तो अच्छा, एक और चीज जो कि थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट क्या होती है कि ये जो लोन्स होते हैं इनमें ज्योग्राफिकल डिस्टेंस का बहुत मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बैठ के मैं पुणे का लोन नहीं कर सकता हूँ। मैं आई कैन गो मैक्सिमम टिल वरई, ये वसई है, विरार है, या इधर भिवंडी है। तो अमरावती में व्हाट आई कैन डू, ऋषभ जी, मैं आपको एसबीआई का कोई कनेक्ट दे देता हूँ, ठीक है? जिनके साथ आप प्रिसाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो मतलब 2 मिनट में आप क्वेश्चन पूछिए उसका मैं कोई रेडी आंसर दे दूं तो इज नॉट वाइज ऑल्सो, क्योंकि कोई आपका कोई लोकल बैंकर जो कि एक्चुअली राइट प्लेटफॉर्म अमरावती में एडीबी अमरावती महाराष्ट्र सर्किट से, लेकिन अपने अकोला अमरावती में दे देंगे। उदय जी, आप इनके साथ प्लीज कनेक्ट कर दीजिए, मैं आपको अमरावती का कोई कनेक्ट दे देता हूँ जहां पे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट शेयर करके क्योंकि हमको इस स्केल पे चाहिए लोग वहां पे, है ना? तो वो आपसे बात कर लेंगे। और आप उनको बोलिए बोलिए ऋषभ जी। हाँ सर, उदय सर से मैं बात करूँ क्या अभी? उदय, अभी सेशन के बाद आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मेरा मेल आईडी भी ले लीजिएगा। नंबर भेज दिया, आप बात कर लीजिएगा। ओके हाँ ओके। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, क्योंकि मुझे अमरावती में कौन सा कोऑर्डिनेट है जो कि इस एएल को देखता है, तो उसके साथ ही आप बात करेंगे तो बेटर रहेगा। किसी भी नॉर्मल ब्रांच में मत बात कीजिएगा। नहीं सर, मैं ब्रांच नॉर्मल ब्रांच में गया था सर, सही आंसर भी नहीं देते, और नहीं पता है। देखिए क्या होता है ना कि जब आप किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, इट इज नॉट एसबीआई, इट इज एनी, तो वो इतना बड़ा होता है कि आप हर जगह पे हर चीज को, ज्यादातर ब्रांचेस रिटेल बैंकिंग कर रही होती है और एसबीआई की सारी सर्विसेज सब्सिडाइज होती है, तो एवरीबडी कम टू एसबीआई। तो क्या होता है कि अब उस साइड में भी क्या होता है, जब आदमी के सामने ढेर सारे काम होते हैं तो ये प्राथमिकता का सिद्धांत कहीं पीछे चला जाता है, वो जो आता है करता रहता है। और ये जो सारे लोन्स हैं, ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग ग्रुप से होती है, ठीक है? तो मैं वहां का वो नोडल ऑफिसर जो एग्री में, स्पेशली एग्रीकल्चर लोन या स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया मुद्रा में डील करता है, मैं उससे आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? ओके यस सर, ओके, थैंक यू सर। सर if there are no more questions, can I leave it because I'm scheduled for my next meeting? सर जी नमस्ते, मैं पाटिल बात कर रहा हूँ जलगांव। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। जब मैंने मेरा काम चालू किया है सर, तो मेरा भी अनुभव ऐसा ही है कि मैं जो हमारा जो बैंक है उसके पास गया और उसको बोला कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि यार आपका अगर कोई जैसा या कहीं हो यूनिट तो हम आपको तुरंत लोन दे दें, लेकिन आप गाँव में काम करते हो, गांव में जो घर है वो है, तो हम उसको कोलैटरल नहीं कर सकते, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो और आपकी जो खेती है खेती भी हम कुछ ये नहीं कर सकते। आप कोई सिटी में जाके काम आपका जो इकाई है वो लगाओ, तो फिर हम आपको, पहली बात ये है कि अगर सिटी में जाके लोग, अगर हमको काम करना है वहाँ पे इकाई लगाना है तो वहाँ पे ट्रेड हुई जाएगी ना, है ना? नहीं, आप जिस ब्रांच में गए थे गांव की ब्रांच में गए थे क्या? हाँ, हमारे यहाँ अड़ावत की जो ब्रांच है ना एसबीआई, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अड़ावत, जलगांव जिले में। दोनों ना, वो तो गांव में भी कर सकते हैं, ठीक है? आप कोई जलगांव के भी नोडल ऑफिसर का नंबर शेयर कर देते हैं, है ना?
जलगांव में देखिए, ये आई डोंट बाय दिस लॉजिक। अगर आपका गांव में यूनिट लग रहा है, लग गया है, तो देखिए अपफ्रंट सिक्योरिटी आप नहीं देंगे तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी में कंसीडर हो जाती है, प्रोवाइडेड कि वो लैंड जो है वो भले एग्रीकल्चर लैंड हो, वो जो वहां का लोकल कौन सा एनेक्शन कहते हैं उसमें बस चढ़ जाता है। तो मुझे प्राइमा फेसी को इसमें कंस्ट्रेंट नहीं दिख रहा है कि ऐसा क्यों वो कह रहे थे। मैं आपके साथ जलगांव महाराष्ट्र किसमें आता है, किसमें आता है, कौन से नेटवर्क? नहीं पता इसमें क्योंकि जलगांव नासिक में आएगा, नासिक में आएगा। मैं आपको नासिक या जलगांव में कोई कोऑर्डिनेट आपको दे दूंगा, आपको अभी पाटिल साहब आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो वहां पे जो भी इसका वो देखते हैं वो मैं आपको उनको दे देता, उनका नंबर अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आप उनके साथ शेयर कर लीजिएगा। इन प्रिंसिपल ऐसा कुछ नहीं है कि आप शहर में ही आपको लगानी है, गांव में नहीं लगा सकते हैं। कोई फिजिबल समस्या हो कि वहां लाइट ना आती हो, वहां पानी नहीं आ रहा हो, तब कोई कह सकता है कि जी यहाँ पे तो बिजली तो आती नहीं, आप प्लांट कैसे चलाएंगे, तब आप कहेंगे हम जनरेटर चलाएंगे, तब वो बात हो कुछ और है। मगर ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसीलिए तो मुझे इस बारे में समझ नहीं आ पाई। अदरवाइज मैं आपको सर, जलगांव नासिक का कुछ कनेक्ट देता हूँ। प्रोबब्ली यू स्पीक टू द राइट पर्सन अबाउट दिस। सर ये बैंक है जो मुद्रा के लिए भी बैंक का बैलेंस शीट और मांगती है, आईटीआर रिटर्न मांगती है मुद्रा के लिए? हाँ यस सर। सर मुद्रा के लिए एक्टिविटी का प्रूफ होना चाहिए, जो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, और आप ने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है उसके लिए। अब मुझे प्रिसाइज एक्टिविटी नहीं पता है कि वो क्यों क्या किस चीज में मांग रहे हैं, तो मैं आपको जो प्राइमरी गाइडलाइन बता रहा हूँ वैसे करके। आपकी एक्टिविटी वैसे क्या है सर? सर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है? यस सर, कहाँ पे? अहमदनगर। अहमदनगर एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग। इंडिविजुअल आईटीआर मांग रहे होंगे आपका? सोल प्रोप्राइटरशिप है? सोल प्रोप्राइटरशिप है? हाँ नहीं, अभी प्राइवेट लिमिटेड की है। प्राइवेट अभी की है ना, 2021 में की है। 21 से प्राइवेट लिमिटेड की है, और आपका उसके साथ मांग रहे हैं? यस सर, कोलेटरल भी मांग रहे हैं, आईटीआर भी मांग रहे हैं। नहीं, कोलेटरल तो नहीं मांग सकते। आईटीआर डिपेंड करता है कि आपका एक्टिविटी क्या है, वहां का लोकल इनकम को बैंकर को सब्सटैंशिएट करना पड़ता है। हमारे खुद के ऑडिट डिपार्टमेंट होते हैं, तो अगर आपने कोई, अगर उसमें कुछ इनकम का पैरामीटर है उसके लिए आईटीआर, वो भी बहुत पुराना 4-5 साल का नहीं मांगेंगे, जो रिसेंट आईटीआर से वो मांग सकते हैं और आने वाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग सकते हैं, मगर कोलेटरल तो नहीं मांगेंगे। कोलेटरल मुद्रा लोन में कोलेटरल का मतलब नहीं होता है। सर कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए तो ये चाहिए ना, पैसे चाहिए। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मगर कोलेटरल मैं कह रहा हूँ, मुद्रा लोन में तो गवर्नमेंट की गारंटी होती है, उसमें इनकम आपका जरूरी नहीं कि आपके इनकम की लाइन में आपको लोन मिलेगा, इनकम से ज्यादा भी लोन मिल सकता है, मगर जस्ट टू सब्सटैंशिएट कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे जब तक पैसे नहीं आएगा तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा ना सर? नहीं, आप क्या कह रहे हैं, आपका एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है कि नहीं? ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गया हमारा, हम सोल्व भी कर रहे हैं अभी मार्केट में प्रोडक्ट। हाँ, तो किसी ना किसी स्केल पे तो आपको लोन मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आप बहुत, जैसे मैंने अभी, मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने ड्यूरिंग द वो किए थे, कि जो आप एक्टिविटी जिस लाइन में कर रहे हो आप उसको कितना स्केल अप कर सकते हो, ये दिखाने के लिए अगर आपके पास प्रोजेक्ट है, आपके रिपोर्ट में आपके पास है, तो देयर इज नो रीजन क्यों नहीं होगा। मैंने बताया ना, किसी का 1 करोड़ का सेल है और कहे कि साहब मुझे 5 करोड़ लोन दे दीजिए तो मैं 50 करोड़ का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मगर अगर आपका 5 लाख 10 लाख का सेल है और कहे कि सर मुझे 2-4 लाख मिल जाएगा तो मैं 15 लाख 20 लाख 18 लाख पहुंचा दूंगा, तो ये फिजिबल है। तो वो अब स्केल आप देख लीजिए, क्योंकि वो आपका काम आप जानते हैं और वहां का लोकल ज्योग्राफी आप जानते हैं। मैं आई कैन ओनली टेल यू अबाउट विच आर ब्रॉड इन नेचर, है ना, जिसमें कि हम एक बड़े भूगोल को बहुत सारे बैंक मैनेजर को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में ही कुछ पता नहीं है। बहुत नहीं है, देखिए स्टार्टअप इंडिया बहुत नहीं है, इसीलिए आईसीआर ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है जिसपे एमएसएमई उड़ान के बारे में पूछना चाहूंगा ना, वो भी आपने जो बताया एमएसएमई उड़ान अभी, तो उसके बारे में वो बोलेंगे नहीं अभी पता नहीं, आपको 2-4 दिन में बताते करके। बहुत अभी है। वैसे तो आप गूगल कर सकते हैं। देखिए अब हम 2024 में बैठे हुए हैं, तो यू कैन गूगल, और आपको वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन आरबीआई की साइट पे, एसबीआई की साइट पे, गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो आप उससे अपने को रॉबस्ट कीजिए, सब्सटैंशिएट कीजिए, है ना, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप दो चीजें होती है ना भारतीय नागरिकों के, अधिकार और कर्तव्य। तो अधिकार जानने के साथ अब उसको सब्सटैंशिएट आप कैसे करेंगे, कर्तव्य साइड पे कैसे आएंगे, वो जो चीजें कह रहे हैं हम उसमें अपने राइट्स ढूंढ लेते हैं कि गवर्नमेंट देगी, मगर उसके अंदर फाइन प्रिंट्स होता है कि उसमें हमको क्या करना है।
गवर्नमेंट हर जगह लिखा है कि गवर्नमेंट इन तीनों स्कीमों में गारंटी कवर तब करेगी जब 12 महीने की एक्टिविटी आपने चला ली है। तो इसीलिए कोई लेंडर इस बात को हमेशा पूछता है कि भाई साहब ये जो करने जा रहे हैं या जो कर रहे हैं 12 महीने का, यू आर गेटिंग माय पॉइंट सर? यस सर। हाँ, तो ये वो चीज है। तो आप इसको ठीक से इन लाइंस को देखिए, उसका इंटरप्रिटेशन कंजर्वेटिव रखिए और उसको आप कैसे उसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, आपकी एक्टिविटी जो कुछ भी है। इसीलिए ज्यादातर लोग, जो मैंने स्केल अप को लेके एक बात बताई कि हम प्रोडक्ट तो बहुत वजनदार है, और हम, अगर मैंने आपको बताया ना कि 2 करोड़ की सेल है और कहेंगे साहब मेरे को 5 करोड़ दीजिए, 100 करोड़ की हो जाएगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लेंडिंग जो है, मैं बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो जो है बहुत ही मैथमेटिकल और बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच हो जाता है। इसके अंदर कोई भी बैंक, नॉट ओनली एसबीआई, इवन द एनबीएफसी और या किसी को भी लेंगे, वो यही अप्रोच रखता है। तो इसीलिए आज ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं वो मनोविज्ञान, वो जो जिस मनोव्यवस्था के साथ कोई भी लेंडर आता है वो बता पाऊंगा आपको, है ना। और ये जो दूरियां हैं, ये जो थिंकिंग गैप है, इसको हम कम कर पाए। Okay, I think we'll take on last question only because we are out of time right now. Yeah, please. Yeah. If anyone have any questions, we will take it out. Last question. Okay, I think there is no question. I think all are understood very well. We had a very great interaction with our startups actually, and we had a very deep interaction towards understanding the government initiatives, which is by SBA as well as all another different center initiatives. So I really thank you from ICAR Sircot Raftar Agribusiness Incubator for giving us a time of around 1.5 hour from your busy schedule. And this is very important and very expertise which has to be needed for our startups. So in future, any kind of connects we will initiate from the startup, I definitely connect with you, and we'll definitely have some good interaction in coming future. Thank you so much, sir, for the session and the interaction with our startups. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Good day to all. Thank you for listening. और I hope I was instrumental and useful. आपको पहले से ज्यादा इक्विप्ड आप महसूस करें, तो यही हमारा उद्देश्य था यहाँ पे आने का। Thank you. Definitely. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.